الحمدللہ ہم ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کی انڈیا کی اینٹ سے اینٹ پہنچا دیں گے انشاءاللہ ایسی کی تیسی انڈیا کی. دشمن کو ایک اور رسوائی کا سامنا. پاکستان نے بھارت کے مزید 3 ڈرون مار گرائے. لاہور میں والٹن روڈ کے قریب بھارتی ڈرون کو سسٹم جیم کر کے گرایا گیا. جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ڈرون سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. گجرات اور گجراوالا میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب. ایئر ڈیفنس سسٹم نے ڈرون گرا دیے. ڈرون کے پرزے مختلف علاقوں سے مل گئے. پاک بھارت کشیدگی. ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس عارضی طور پر بند. کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معطل رہے گا. ایئرپورٹ اتھارٹی کا نوٹم جاری. بھارت کے بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، 57 زخمی ہو چکے ہیں. ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے کہ اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے. پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. رات کی تاریکی میں بھارت کی سفاکیت. 31 معصوم شہری شہید ہوئے، 57 زخمی. دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے جو فوج سے لڑنے کے بجائے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بھارت نے جن بچوں کو نشانہ بنایا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ثابت ہو گیا بھارت معصوم شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا بھارت نے ہزاروں فضائی مسافروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالی. نیلم جہلم پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا. جواب میں پاکستان نے دشمن کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دے رہے ہیں. امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے. معصوم شہریوں کے خون کا حساب لیا جائے گا. پاک بھارت کشیدگی. لاہور اور سیالکوٹ کی فضائی حدود بند کر دی گئیں. دونوں شہروں کے فضائی روٹ دوپہر 12 بجے تک بند رہیں گے. مدینہ منورہ سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو کراچی بھیج دیا گیا. پاکستان کے حملوں کا خوف. رات گئے ممبئی، دہلی اور گجرات میں لائٹس بند. ایمرجنسی سائرن بج گئے. امرتسر کی ضلعی انتظامیہ نے ایک بار پھر بلیک آؤٹ کر دیا. شہری گھروں میں رہیں، ضلعی انتظامیہ کی ہدایت. قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا. جواب کے لیے جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا. خیالی دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹا بہانہ بنا کر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. معصوم شہریوں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں. بھارت نے ایک بار پھر خطے میں آگ بھڑکا دی. جنگی نتائج کی تمام تر ذمہ داری مودی سرکار پر عائد ہوگی. عالمی برادری قوانین کی سریحن خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری. بھارت کو بھرپور جواب دینے پر مسلح افواج کو شاباش. آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہو سکتا ہے بھارت پھر کوئی حرکت کرے. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں. بھارت نے تنازعہ بڑھایا تو ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد. پاک فضائیہ کے شاہینوں کو بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر خراج تحسین. سپہ سالار سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات. پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والا قیمت ادا کرے گا، سپہ سالار اور ایئر چیف کا عزم. پاک بھارت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں رابطہ ہوا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو. کہا پاکستان کے خلاف جو کچھ بھارت نے کیا ہے ناقابل معافی ہے. پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے. کہا جا رہا تھا کہ رافیل طیارے بہت اچھے ہیں لیکن بھارتی پائلٹ نکمے نکلے. اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. نائب وزیر اعظم کی غیر ملکی سفیروں کو بھی بریفنگ.
भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। अमन के ख्वाह है लेकिन जवाब देंगे। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत तहकीकात से क्यों खौफजदा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख बोले, भारत ने जारिहत का मुजाहरा किया। हम अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमरीका से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की भी तवक्को का इजहार। अमरीकी सदर की पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहता हूं। सऊदी और अमरीकी वजीर वज़राए खारजा का राबता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती के उमूर और इक्तिसादी ताउन पर भी गुफ्तगू की। चीन पाकिस्तान का हम आवाज। भारत की जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दें। रूस का इख्तिलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। स्पेन, बरतानिया और बांग्लादेश का भी कशीदगी कम करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात करें। मलाला यूसुफजई की अपील। कहा, बेगुनाह मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करती हूँ। बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। राफेल लड़ाका तैयारा बनाने वाला फ्रांस भी पाक फौज की सलाहियतों का मोतरफ। पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी एहलकार की तस्दीक। CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाकी राफेल तैयारों के तबाह होने के नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। तैयार थे कब दुश्मन के तैयारे आए और इन्हें समंदर में फेंक दें। हमारे उकाब पलक झपकते लपके और 5 तैयारे मार गिराए। तहम्मुल से काम लिया, वरना 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। भारत राफेल तैयारों पर बड़ा नाज करता था। अंजाम देख लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुश्मन को ललकार। अपोजिशन से मिल बैठने की भी अपील। कहा, आए पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। वजीर आजम और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राबता। तैयब एर्दोवान का भारतीय हमलों में आम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इरादा। भारत वहशी और दरिंदा बन चुका। हमारे बच्चों पर हमला किया। हौसला रखो और तैयार रहो। अब पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को करारा जवाब। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमले करते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, तबले जंग बच चुका। भारत दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। निहत्थे शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का बदनुमा दाग बन चुका। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद। भारत का पाकिस्तान पर हमला तारीखी गलती। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर पाश पाश कर दिया। दोबारा हिमाकत की तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। वजीर आजम की बातचीत की पेशकश का खैर मकदम। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। मिलकर वतन का दिफा करेंगे। बुज़दिल भारत ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हमलों में शहीद मासूम इर्तिजा अब्बास सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। 13 शोहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शोहदा की नमाज जनाजा अदा। भारत की एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान को कर्ज न देने की भारतीय दरख्वास्त IMF ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी। वाज़ेह कर दिया कि कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल के मुताबिक आज ही होगा। तर्जुमान का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में कमी की उम्मीद करते हैं। पाक भारत कशीदगी हज परवाजों की रवानगी से मुतालिक वजारत मजहबी अमूर में डेस्क कायम कर दिया गया। हेल्पलाइन नंबर भी जारी। हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगा। इस्लामाबाद और लाहौर में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी डेट शीट के मुताबिक ही होंगे। मुलतवी होने वाले पेपर्स की तारीख का ऐलान
बाद में किया जाएगा। 65 से लेकर 25 तक भारत की बुज़दिली चल रही है और पाकिस्तान की दलेरी चल रही है। हम तुम्हें बताएंगे अब कि हमला कैसे होता है। हम अपना तन मन धन सब अपनी फौज और अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान सदा है और ताक़यामत है। पाक फौज के साथ है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आजाद कश्मीर तक गिलगित और कराची तक खैबर अवाम पुरजोश। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। आरजी खुशी है जो हिंदुस्तान ने इस वक्त हासिल की है। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर भारत का इसको तबाह कर दिया। ये चेक पोस्ट उड़ाने का मंजर है। भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। सबको शाबाश है जिन्होंने उनकी चौकियों को उड़ाया। पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक भारतीय जारहियत और राफेल तैयारों के ढेर होने के मनासिर, पल पल बदलती सूरत हाल। समा ने नाजरीन को अहवाल बताया, पाकिस्तान की फतह का हाल सुनाया। भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। शहर शहर नुमाइंदों का जाल, भरपूर तबसरे, जानदार तज्जिए। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मैगुएल एंजल को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खैर मकदम। कहा, हम नफरत और इम्तियाज के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। बाबर प्रैक्टिस के दौरान उंगली पर गेंद लगने से जख्मी हुए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक हो गई। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, अब खुमियासा भुगतना होगा। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गुरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन ने थोड़ी देर में ही घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर अस्करी क़यादत को सलाम।